मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وہ جنات بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جو ان کو منظور ہوتا، قلعوں میں سے اور تصویروں میں سے، قلعے اور تصویریں اور لگن، بڑی بڑی لگن جیسا کہ تالاب اور دیگے چولہے پر رکھی ہوئی جمی ہوئی جو ہل نہ سکتی تھی۔ اے داؤد کے گھر والوں، نیک عمل کے ذریعے نیک عمل کرو احسان مان کر، اور میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو احسان ماننے والے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی تو نہ بتلا سکی کوئی چیز ان کی موت پر ان کو کسی چیز نے نہیں بتلایا، مگر گھن کے کیڑے نے جو کھاتا رہا اس کی لاٹھی کو، اس کے عصے کو۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جناتوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو نہ رہتے، اس ذلت والی مصیبت میں نہ رہتے۔ کلام پاک کی آپ الحمدللہ سورہ سبا سن رہے ہیں، اور سبا کے بارے میں جو سورہ سبا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی آیت جو اگلا سبق ہوگا اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ سبا کہاں ہے؟ یہ ایک ملک کا نام ہے جو یمن میں ہے، جو اس وقت موجود تھا۔ تو الحمدللہ سورہ سبا کی آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے 13 اور 14 دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے ذریعے، پھر جنات جیسی طاقتور قوم، جنات جیسی طاقتور مخلوق، اس کو اللہ رب العزت نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ حالانکہ انسان کمزور ہے، جنات سے زیادہ کمزور ہے، لیکن جنات جیسی طاقتور قوم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مسخر کر دیا تھا۔ اتنا ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات۔ اور اس کے بارے میں ابھی آئے گی آگے آیت اس کے بارے میں۔ تو بہرحال پچھلے سبق میں بات آئی تھی
آج کے سبق میں یہ آیا یعملون لہ ما یشاء، جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کام لیا کرتے تھے جو ان کو منظور ہوا کرتا تھا. اونچی اونچی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے بنوایا کرتے تھے. اسی طریقے سے تصویریں ان سے بنوایا کرتے تھے. اور تصویریں کون سی؟ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ تصویر جاندار کی ہو یا غیر جاندار کی ہو، ان کی شریعت میں جائز تھی. لیکن بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ان کے ذریعے جو جناتوں کے سے جو تصویر بنوایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ صرف درختوں کی اور مکانوں کی بنوایا کرتے تھے، جاندار کی تصویر نہیں بنوایا کرتے تھے. وہ ان کی شریعت میں بھی ناجائز تھا. بہرحال ہماری شریعت میں تو شریعت محمدیہ میں بالکل ممنوع قرار دیا ہے، بالکل منع ہے تصویر بنانا. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑی بڑی تانبے کی لگن بنوایا کرتے تھے، تالاب، حوض جن میں پانی بھرتے ہیں، تانبے کے ذریعے ان سے بنوا دیا کرتے تھے. ایسے ہی بڑی بڑی دیگیں ان سے تیار کرایا کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ پتھروں کو ترشوا کر ان سے بڑی بڑی دیگیں، کتنی، جو کئی آدمیوں کا کھانا جن میں پکتا تھا، ایسی دیگیں کہ چولہا بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا. دیگ بھی اور چولہا بھی دونوں جڑی ہوئی تھی، جو ہل نہ سکتی تھی. مطلب یہ کہ پہاڑوں کے اندر وہ جو ہے پتھروں کو تراش کر کے دیگ بھی بن جایا کرتی تھی، اور نیچے چولہا بھی رکھا ہوا اس سے جڑا ہوا ہوتا تھا. تو اس کے نیچے آگ جلا کر اس میں کھانا ڈال کر کے بنا کر کے لوگوں کو کھلا دیا کرتے تھے. یہ کون؟ جناتوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام لیا کرتے تھے یہ کام. اسی کو قرآن کریم کے آج کے سبق میں ذکر فرمایا، یعملون لہ ما یشاء، کام لیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان جناتوں سے، ما یشاء، جو ان کو منظور ہوتا، جو ان کی چاہت ہوتی. من محاریب، محاریب یہ محراب کی جمع، اس کے معنی آتے ہیں اونچی بلڈنگ، قلعے جن کو کہتے ہیں قلعے، محل. تو قلعے بنواتے، قلعوں میں سے یعنی قلعے اور بلڈنگیں اور عمارتیں ان سے تیار کراتے تھے. وہ تماثیل، اور تصویریں، وہ جفان کل جواب. ہماری شریعت میں یعنی مذہب اسلام کے اندر اب تصویر بنانا جاندار کی ناجائز اور حرام ہے. غیر جاندار کی بنا سکتے ہیں، جیسے درخت ہے، مکان ہے، ان کی تصویریں بنا سکتے ہیں. لیکن جاندار کی، کبوتر، چڑیا، بھینس، شیر، چیتا، انسان، ان کی تصویریں ناجائز اور حرام ہے. اور اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی علت یہ بیان کی گئی، چونکہ اب یہ مذہب اسلام قیامت تک رہے گا. جب قیامت تک رہے گا تو ایسی صورت میں ان راستوں کو بند کیا گیا ہے جن کے ذریعے پتھروں کی یا کسی چیزوں کی عبادت ہو سکتی تھی. چونکہ پہلی شریعت میں کیا ہوا ہے کہ جو اللہ والے گزرتے تھے، نبی گزرتے تھے، انبیاء گزرتے تھے، نیک لوگ گزرتے تھے، تو وہ اپنی مسجدوں میں ان کی تصویریں بنوا دیا کرتے تھے دیواروں پر، اور ان کا نام لکھ دیا کرتے تھے، یہ فلاں بزرگ تھے، یہ فلاں پیغمبر. اور کیوں کرتے تھے ایسا؟ لوگ آئے عبادت کرنے کے لیے تو ان کو دیکھ کر، یار اس نے اتنی عبادت کی تو میں کیوں نہیں کر سکتا، یعنی یہ اندر کڑن پیدا کرنے کے لیے ان کی تصویر بنایا کرتے تھے. لیکن آگے چل کر کے وہ سب مورتیوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی، بت پرستی بن گئی تھی، چونکہ ان کے بعد شریعت آنی تھی. جب بگاڑ آتا تھا تو پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے اللہ رب العزت. اب اگر بگاڑ آئے گا تو اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ نے بگاڑ کی چیزوں کو ہی ممنوع، ناجائز اور حرام قرار دے دیا. اس لیے اب کوئی مسجد میں کسی اللہ والے کی تصویر نہیں بنا سکتے ہیں. یہاں تک کہ مزاروں کو بھی ممنوع قرار دیا ہے کہ مزار، کسی اللہ والے قبر پر مزار بنا کر کھڑا کر دینا یہ بھی ناجائز ہے. تو ایسی صورت میں اب تو
तो उसी को बयान किया, वो तफासिल और तमासील। एक तो ये इल्लत है, दूसरी इल्लत ये बयान की गई, दलील ये दी कि तस्वीर इसलिए नाजायज है हमारी शरीयत में चूंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नक्काली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बना रहे हैं, सबकी तस्वीर देखी कैसी कैसी तस्वीरें बैठी हुई है, और दुनिया के अंदर किस तरह के चरिंद और परिंद उड़ने वाले जानवर, कोई किस तरह का, कोई किस तरीके से। तो उन तस्वीरों में लेकिन अल्लाह ने हकीकत में तस्वीर नहीं, उनको जानदार बनाया है। हम अगर तस्वीर बनाएंगे तो ये अल्लाह की ताला की नक्काली तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर हम जान नहीं डाल सकते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन बुलाकर कहेंगे तूने मेरी नक्काली क्यों की थी, और जब नक्काली की थी फिर तूने काम पूरा क्यों नहीं किया, उसके अंदर जान क्यों नहीं डाली। डालकर दिखा उसमें जान, नहीं डाल सकता बंदा, इसलिए उसको पकड़ा जाएगा कि तूने मेरी सिफत, ये बनाने का जो काम था मखलूक को, ये तूने अपने हाथ में क्यों लिया था। तो ये, और हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसव्विर को जहन्नम में डाला जाएगा। जो भी तस्वीर बनाएगा, हर मुसव्विर, ये हदीस है। ऐसे ही सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जो तस्वीर बना रहा हो। इसलिए हम सबको बचना है, अपने बच्चों को भी तस्वीर बनाने से बचाना है, तस्वीर नहीं बनाना है। बहरहाल उसकी एक मिसाल, वो एक अलग चीज है कि लोग कहते हैं जी फोटो वगैरह, तो फोटो की जहां गुंजाइश है यानी हाफ, उसकी तो गुंजाइश है, लेकिन पूरा फोटो खिंचवाना ये सही नहीं, नाजायज है। तो नाजायज तो नाजायज ही रहेगा। तो ऐसी सूरत में, लेकिन मोबाइल के जरिए जो हो रहा है, इसके कुछ मिस्र के जो उलमा हैं वो इसकी जवाज के कायल हैं। बहुत सारे उलमा आज भी इसकी जवाज के कायल है। इस वजह से मोबाइल के जरिए तस्वीर चल रही है या ये वीडियो बन रही है, ये मजबूरी के एतबार से इसको जायज करार दिया है उलमा ने। मजबूरी क्या है कि जिन रास्तों से आज घर के अंदर शर और फसाद आ रहा है, जिंदगियां खराब होती जा रही है, या जिंदगियों के अंदर आज बददीनियत और लोग मजहब इस्लाम को छोड़कर जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए गुमराह हो रहे हैं, तो उसी रास्ते से हक और बात को पहुंचाया जाए ताकि लोगों के ईमान महफूज रहे। इस नियत से इसको बनाने की मजबूरी बन गई। फिर यह भी हो सकता है कि भाई रिकॉर्ड करके जरिए पहुंचा दिया जाए। रिकॉर्ड के जरिए बात तो मालूम हो जाएगी, लेकिन ये मालूम नहीं होगा कहने वाला कौन है। ये हमारा आदमी है, ये कोई और दूसरे फिके का आदमी है, ये बात मालूम नहीं हो रही। इसलिए वीडियो के जरिए जो रिकॉर्ड हो रहा है ये तफसीर या बयान, ये इस वजह से ताकि ये समझ ले कि भाई नहीं, ये आदमी, ये जो उलमा है ये हमारे उलमा है और हक उलमा है, इसलिए हमें इनकी ही सुननी चाहिए, दूसरों की नहीं सुननी चाहिए। इस वजह से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बहरहाल इसके एक अलग रिसाले हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको ये बताना है कि तस्वीरें बनवाया करते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन जिन्नातों के जरिए। और बड़ी बड़ी वजीफान, ये है लगन, जो तालाब और हौज की शक्ल में बड़े बड़े तांबे की वो बनवाया करते थे हौज अपने घरों में। या वजीफानिन कल जवाब ये जाबिया की जमा है, इसके माना आते हैं तालाब और हौज के, जो छोटे छोटे होते हैं। वह कुदूर रासियात, और कुदूर ये इधर की जमा, इसके माने आते हैं हांडी के, देग के। रासियात इसके माने आते हैं चूल्हे के। तो देगे बनवाया करते थे जो चूल्हों पर रखी हुई होती थी, जमी हुई, जो हिल ना सकती थी। मुराद क्या है, पत्थरों को तराश करके चूल्हा उसके साथ और देग बड़ी सी बना दिया करते थे, और उसमें बहुत सारे लोगों का खाना बनता था। इअमलू आला दाऊद शुक्रा, इअमलू आला दाऊद शुक्रा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब कहना यह चाहते हैं, ए दाऊद के खानदान वालों, यानी हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के बेटे हैं, साहबजादे हैं। तो अल्लाह यूं कहते हैं कि नेक अमल के जरिए अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह ने इतने सारे नेमतें तुम्हें दी थी। अब इससे बात मालूम हुई कि अल्लाह ने हमें भी नेमत बहुत सारी दे रखी, नेमतें कितनी सारी नेमतें हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे रखी है। भाई हाथ पांव का सही होना अल्लाह की नेमत है, हम अच्छे तरीके से खा रहे हैं अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हमें घर दिए हैं, बार दिए हैं, अल्लाह ने जमीनें दी हमें, तरह तरह के, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। तो इस नेमतों का शुक्र सिर्फ ये नहीं कि जबान के जरिए अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, नहीं, बल्कि अल्लाह कह रहे हैं इअमलू, नेक अमल करो।
शुक्र तब होगा अल्लाह की नेमतों का जब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तुम काम करोगे, उन नेमतों का इस्तेमाल करोगे, तब शुक्र अदा होगा। नमाज पढ़ना ये एक काम है, अल्लाह ने एक अमल दिया है, तो इसके जरिए क्या है, शुक्र अदा है। इसी तरीके से नमाज पढ़ना, रोजे रखना, कुरान पढ़ना, जितने भी हुक्म है उन सब हुक्मों को अदा करना, ये अल्लाह का हुक्म है और ये क्या है, अल्लाह का शुक्र। तो आप नमाज पढ़ने आए, आप क्या कर रहे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें आपको दे रखी है, आंखों का सही होना, कान का सही होना, हाथों का सही होना, पाँव का सही होना, ये सब क्या है, अल्लाह का शुक्र। छोड़ दो, तो अल्लाह का शुक्र अदा हो रहा है। वो कलीलुम मिन इबादिश शकूर, अल्लाह ये कहते हैं कि नेक अमल के जरिए शुक्र अदा करने वाले लोग बहुत कम हैं। अब देख लीजिए इतने बड़े महल्ले में कितने लोग नमाज पढ़ने आए, कितने लोग कुरान पढ़ रहे हैं रोजाना, बस जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा बड़ा कौन सा मस्जिद में बैठ करके कुरान पढ़ रहा है। अब रमजान आएगा, रमजान में पढ़ेंगे, फिर जिक्र कौन कर रहा है। तो इसी तरीके से अल्लाह यूं कहते हैं, वो कलीलुम मिन इबादिश शकूर, मेरे बंदों में बहुत कम लोग हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। जबान से तो करने वाले बहुत हैं, आप गैर को भी देखोगे, आप गैर के पास जाओगे, गैर मुस्लिम के पास पूछोगे भाई किसी, अरे ऊपर वाले ने दिया, भाई अल्लाह ऊपर वाले का बड़ा करम है, वो अपने अल्फाज में कहेगा है, तो वो भी तो जबान के जरिए कर रहा है और जबान के जरिए हम कर रहे हैं। ये शुक्र अदा नहीं है। शुक्र अदा यह है कि उसने जो हुक्म दिए हैं उसकी मर्जी के मुताबिक उन नियमत, जो नियमतें दी है उसकी मर्जी के मुताबिक उन नियमतों को खर्च करना। माल दिया उसके हुक्मों पर लुटाओ, जान दी तो उसके हुक्मों पर लगा, रोजा रखो, नमाज पढ़ो। इसी तरीके से जो भी हुक्म है वो कलीलुम मिन इबादिश शकूर। आगे फरमाया फलम्मा कदीना, अगली आयत में बात बताई जा रही है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मौत का वक्त आ गया तो उस वक्त वो मस्जिद बैतुल मक़दिस जहां पर आज लड़ाई हो रही है, जो लड़ाई चल रही है, वो मस्जिद बनवा रहे थे जिन्नातों के जरिए। तो जिन्नात लगे हुए थे अपने काम पर, और जिन्नात उनके और भी वाकयात है। बहरहाल हमें तो सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मौत का वक्त आया तो उनसे बैतुल मक़दिस बनवा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म भेज दिया कि सुलेमान, क्योंकि पैगंबरों को पहले ही बता दिया जाता था कि अब आपकी मौत का, वफात का वक्त आ गया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये हुक्म मालूम हुआ तो उन्होंने एक शीशे का घर बनवा करके, महल बनवा करके, और शीशे के महल के अंदर चले गए। और उनकी आदत थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि महीना महीना वो खलवत में रहकर, यानी तन्हाई में रहकर अल्लाह की बहुत इबादत करते थे। तो उन्होंने शीशे का वो बैतुल मक़दिस के पास बनवा करके उसके अंदर चले गए, और ये इसलिए बनवाया था कि वो शीशा आरम पार उसमें दिखता था बिल्कुल, तो जिन्नात देखते रहे और काम करते रहे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इबादत में मशगूल रहे। बहरहाल उनकी वफात हो गई, यानी रूह कब्ज कर ली फरिश्ते ने आकर के, जब वो इबादत से फारिग हुए वहीं। और बाद रिवायत में है कि वो अपनी लाठी के सहारे ऐसे खड़े हो गए थे और फरिश्ते ने उनकी रूह कब्ज कर ली, तो वो ऐसे ही 1 साल तक रहे उस लाठी के ऊपर, ऐसे ऐसे रहे, दोनों हाथों से पकड़ रखी थी वो लाठी, और ऐसे ठोड़ी लगा करके ऐसे जिन्नातों की तरफ देखते रहे। 1 साल तक जिन्नात बराबर तामीर में लगे रहे, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं हुई कि शीशे के पास जाकर एक बार हम देख ले जी वो आंख खुली हुई है, बंद है या किस तरह है। इतनी हिम्मत नहीं थी शैतान उनकी, जिन्नातों की, इतने डरते थे, इतने कांपते थे। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर एक भी गड़बड़ करता था जलाया करते थे उनको, आग में उनको जला दिया करते थे, इसलिए बहुत कांपते थे जिन्नात। आज भी तुम आमिलों के पास जाओगे तो आमिल जो है हजरत सुलेमान की कसम खिलवाते हैं जिन्नातों से, हालांकि कसम खाना ये जायज नहीं है, वो इनका एक हरबा, एक फन है उनका, करवाते हैं वो। तो बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर कुरान करीम की आयत बता रही है कि 1 साल तक जब वो मुकम्मल तामीर हो गई, अब उस लाठी के अंदर घुन लग गया,
घुन का जो कीड़ा होता है जिसको दिमक कहते हैं, वो दिमक लग गई और दिमक ने उस लाठी को खा करके बीच में तो बिल्कुल बोधा कर दिया। 1 साल के बाद धड़ाम जैसे नीचे गिर गए और जिन्नातों ने देखा, ओहो ये तो हम जो है गलत फहमी में शिकार होकर के इतनी बड़ी मेहनत 1 साल तक करते रहे यार, सारे थक गए। और ये देखो, क्योंकि जब उन्होंने पता लगाया जिन्नातों ने, लोगों ने जब देखा उस लाठी को, तो लाठी में जब सर्च किया तो देखा कि ये तो 1 साल से लगा हुआ था, इसमें 1 साल से लगा हुआ था, तब जाकर के अब ये गिरा है। तो उन्होंने बहुत अफसोस किया। उसको कुरान करीम ने यहाँ जिक्र फरमाया, उनके अफसोस को भी, और हजरत सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के जिक्र फरमाया। फलम्मा क़ज़ैना, पर जब हमने फैसला कर दिया, अलैहिल मौत, हजरत सुलेमान पर मौत का, मा दल्लहुम अला मौतिही, तो कोई चीज उनको बता ना सकी उसकी मौत को, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का जो मौत की जो खबर थी, किसी चीज ने नहीं बतलाई, ना जिन्नातों को पता हुआ ना इंसानों को पता हुआ, और 1 साल से मरे हुए हैं। इल्ला दाब्बतुल अर्दी, मगर दिमक ने, घुन के कीड़े ने, ताकुलु, जो खाता रहा, मिन साता, उनकी आसा को, उनकी लाठी को, जो उनकी लाठी को खाता रहा, वो घुन का कीड़ा, उसने बता दिया कि तो इंतकाल हो गया था। फरमाया फलम्मा खर्रा, पर जब वो गिर पड़े, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी से, फिर वो लाठी बीच में टूटी तो गिर पड़े, तबय्यनतिल जिन्नु, तो जिन्नातों को मालूम हो गया, जाहिर हो गई ये बात, अल्लाह कानू यालमून अल गैब, कहने लगे अगर हमें गैब की खबर होती, गैब को हम जानते, मा लबिसू, तो हम ये काम ना करते इतना बड़ा। यूं कहने लगे अगर हमें गैब, इससे मालूम ये हुआ क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में भी लोगों को ये खबर हो गई थी कि जिन्नात गैब की खबर जानते हैं, और हमारे नबी के जमाने में, जब हमारे नबी का जमाना था, तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि जिन्नात गैब को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर रद्द फरमाया कि अगर वो गैब को जानते तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत की खबर 1 साल पहले क्यों नहीं हुई उनको। इससे पता चला कि जिन्नात गैब की खबर भी नहीं जानते हैं, जिन्नातों को भी मालूम नहीं होती है। आजकल जो कहते हैं लोग, आमिल लोग, कि मैं अभी मालूम कराता हूं, तो वो जिन्नातों को भेजकर मालूम कराते हैं, लेकिन जिन्नात वहीं बैठे बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं, वो गैब की खबर नहीं बता सकते हैं। लेकिन जिन्नात ये भी नहीं बता सकते मौत का वक्त, उन्हें मालूम ही नहीं किसी को, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 साल हो गए इंतकाल हुआ है और उन्हें मालूम नहीं है, और वही काम कर रहे हैं, खड़े हुए वही खड़े हुए काम कर रहे हैं। तो इससे पता चला जिन्नात गैब की खबरों को नहीं जानते हैं, गैब का इल्म अल्लाह को है। फरमाया अल्लाह कानू यालमून अल गैब, कहने लगे जिन्नात अगर हमें मालूम होता गैब, मा लबिसू, तो हम ना ठहरते, फील अजाबिल मुहीन, इस जिल्लत की तकलीफ और मुसीबत में, यानी इतना बड़ा काम हमसे 1 साल हो गए लगे लगे तामीर के अंदर, इतना बड़ा काम हमसे लिया जा रहा है, भला हम फिर कर सकते थे? हम नहीं फिर करते। हम तो ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर की वजह से हम कर रहे थे काम। तो ये वाकया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। बहरहाल इस तफसीर के जरिए हमें बहुत सारे मसाइल मालूम हुए, बहुत सारी बातें मालूम हुई, बहुत सारी खबरें मालूम हुई। इंशाअल्लाह अगली जो तफसीर होगी वो मुल्क सबा और मलिक सबा के बारे में बताया जाएगा, जो इस सूरत का नाम है सबा। अल्लाह ताला हम सबको के ईमान में, आमाल में मजबूती अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा।